Hello everyone, you are watching the YouTube channel of Rouse Academy for Competitive Exams. This is Advocate Varun Pradhan presenting the daily news review for 26th November 2022. So guys, before we proceed, why don't you hit the like button and subscribe to our channel if you haven't yet. Dear students, in the previous video I asked you a few questions, so let's see what are their solution. Question number 1 was, who recently became Malaysia's new Prime Minister? And the right answer is Mr. Anwar Ibrahim. Another question was, Kadale Kai Parishe, the groundnut festival, is celebrated in which state? And the right answer is Karnataka. Alright, so kindly make a note of these two facts and let's proceed to see what is there in the news. So, dear viewers, wishing a very happy National Constitution Day. The National Constitution Day is celebrated on 26 November every year to commemorate the enactment and adoption of Constitution by the Constituent Assembly. However, it came into force on 26 January 1950, so that 26 January, which was the Purna Swaraj Divas, could be commemorated forever. Alright, in 2015 it was decided to celebrate this day as National Constitution Day. तो आइए आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बारीक और महत्वपूर्ण बातें समझने की कोशिश करते हैं, है ना. सो इफ वी सी इट इन द बिगिनिंग, our constitution is termed as for the people, of the people and by the people. As we are a democratic country, our constitution makers dreamed of making India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, right? Our constitution provides and guarantees certain fundamental rights which are provided under part 3 of our constitution. Our constitution is the largest written constitution in the world. The original constitution contained about 395 articles and 8 schedules, and currently it has nearly 450 articles and 12 schedules. The Constituent Assembly took 2 years, 11 months and 17 days to complete the constitution. Fine. The first meeting of the assembly held on 9th December 1946 and it came into force in Constituent Assembly on 26th November. So it took some whooping 3 years roughly to complete it. Alright. We are aware that Dr. Rajendra Prasad was the head of the Constituent Assembly, but there are few more important names which you should make a note. First is Mr. S.N. Mukherjee, who was chief draftsman of the Constitution. हमारे संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे श्री S.N. मुखर्जी. इनका नाम आप नोट कर लीजिएगा. साथ ही सर बेनेगल नरसिम्हा राव बने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार. सर बेनेगल नरसिम्हा राव was the constitutional advisor of the assembly. Elephant was adopted as the seal of assembly, so kindly make a note of this fact as well. This may be asked in some PCS exams. Alright. The Constituent Assembly had various committees, out of which the most important one was the Drafting Committee, जिसके प्रेसिडेंट बने थे श्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, है ना. प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अम्बेडकर. ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है. कुल जमा 299 मेंबर थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिनमें से 15 महिलाएं थी. ये बात भी आप याद रखिएगा. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो इसे यूनिक बनाते हैं, सिग्निफिकेंट बनाते हैं, अलग बनाते हैं, ठीक है. तो इनको आप याद रखिएगा. ये सारे फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. सो गाइस, टू बूस्ट योर प्रिपरेशन, जॉइन बैचेस ऑफ राउस अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. वी हैव सेपरेट बैचेस फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम एंड एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम, एंड द प्रिपरेशन विल बी फैसिलिटेटेड बाय top educators of this country. So hurry up and join the batches. Give wings to your preparation. Another news is government forms a panel to look into MG Narega's efficiency. MG Narega, which stands for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantees Act.
एमजी नरेगा। तो एमजी नरेगा एक एक्ट था जो 2005 में आया था, ठीक है, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देना, रोजगार की सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। और ये डेडिकेटेड था अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए, ठीक है, अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए ये डेडिकेटेड था। इसमें प्रोविजन है 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट आपको गारंटी किया जाएगा, और यदि सरकार आपको 100 दिन का रोजगार नहीं प्रदान कर सकती है, 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएगी, तो उतने दिन की वेजेस वो आपको प्रोवाइड करेगी। ये एमजी नरेगा का एक ब्रीफ सिनॉप्सिस था, ठीक है। इस एमजी नरेगा की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पैनल बनाया है, ठीक है। इस पैनल के अध्यक्ष होंगे श्री अमरजीत सिन्हा, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, ठीक है। तो इसको सिन्हा कमिटी भी कहा जाएगा, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द हेड ऑफ द कमिटी, ठीक है। इसको टास्क दिया गया है कि सारे पहलू, सारे फैक्टर्स को स्टडी करें और ये सुझाएं कि एमजी नरेगा में और क्या सुधार हो सकते हैं, ठीक है। यही है इस आर्टिकल का पूरा जिस्ट। फाइन, आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज देखते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से उनका पक्ष जानने की कोशिश की है सेम सेक्स मैरिजेस के लिए, ठीक है। सेम सेक्स मैरिज या होमोसेक्सुअल मैरिजेस, ठीक है, समलैंगिक विवाहों के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द व्यू ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग सेम सेक्स मैरिज। Ladies and gentlemen, in 2018 there was a famous case called Navtej Singh Johar case. Navtej Singh Johar case of 2018 decriminalized homosexuality. Alright, it decriminalized homosexuality. पहले एक अपराध था भारत में होमोसेक्सुअलिटी, पनिशेबल अंडर सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड, बट नाउ it is out of the definition of unnatural offenses as defined under 377. ध्यान रखिएगा, ये बड़ी बारीक बात आप सभी, सेक्शन 377 को कंप्लीटली स्ट्राइक डाउन नहीं किया गया है, बल्कि 377 की डेफिनेशन में से होमोसेक्सुअलिटी को हटा दिया है, होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो अब ये डिमांड उठ रही है कि जो स्पेशल मैरिजेस एक्ट होता है, स्पेशल मैरिजेस एक्ट में सेम सेक्स मैरिज को भी लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। लीगल रिकॉग्निशन सेम सेक्स मैरिजेस को प्रोवाइड किया जाए, और इस मामले में आप सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट का व्यू पूछा है, ठीक है। सो ये टॉपिक आपके पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, सोशल इश्यूज और ऐसे के पर्पज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगेन अ डेवलपिंग स्टोरी, सो काइंडली कीप अ चेक ऑन दोज डेवलपमेंट्स। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज देखते हैं जो कि रिजर्वेशन से रिलेटेड है। इन लास्ट फ्यू डेज रिजर्वेशन हैव बीन इन द न्यूज क्वाइट रैपिडली, लगातार रिजर्वेशन के उसमें बात की जा रही है। कल की न्यूज में अभी छत्तीसगढ़ ने अपने स्टेट सर्विसेज में कोटा को इंक्रीज किया, रिजर्वेशन को बढ़ाया है, और आज रिजर्वेशन से रिलेटेड न्यूज आ रही है राजस्थान से, जहां पर एक्स सर्विसमैन के लिए एक सेपरेट कोटा अलाउ कर दिया है राजस्थान गवर्नमेंट ने, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए सेपरेट कोटा की बात कही गई है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है ना। हालांकि अभी ये लेजिस्लेटिव एक्शन से लिया गया निर्णय नहीं है, अभी इसको कैबिनेट ने अप्रूव किया है और इसको एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस से लाना पड़ेगा, बट सिंस कैबिनेट अप्रूव्ड इट, सो वी बिलीव दैट shortly the bill will be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly. All right, so what was the status previously there was a bill in 2018 which granted 12.5% horizontal reservation,
in the ministerial services and 5% in state services and 15% in class 4 services. Now the करंट गवर्नमेंट अशोक गहलोत जी जिसको लीड कर रहे हैं उसने कहा है कि एक सेपरेट एक्स सर्विसमैन कोटा भी हम बनाएंगे सारी स्टेट सर्विसेज के लिए। ठीक है, इतना ही याद करना है, सारे फिगर आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, इसके पीछे का विजडम समझने की आपको जरूरत है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और अगला न्यूज आर्टिकल देखते हैं जो कि बात कर रहा है रशिया ने एक एडवांस्ड फ्यूल ऑप्शन दिया है कुडानकुलम प्लांट के लिए। ठीक है, कुडानकुलम प्लांट के लिए रशिया ने एक एडवांस फ्यूल ऑप्शन दिया है जिससे और ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी रिएक्टर की और एक बड़ी साइकिल होगी। देखिए करेंटली जो फ्यूल ऑप्शन हम यूज कर रहे हैं उसकी लाइफ है 18 मंथ्स और नया ये जो रिएक्टर फ्यूल रशिया ने ऑफर किया है उसकी लाइफ होगी 24 मंथ, यानी कि अभी जो फ्यूल हम यूज कर रहे हैं उसको रिफिल करना होता है हर 18 महीने में और ये नया फ्यूल आ जाएगा तो उसको रिफिल करना होगा हर 2 साल में, दैट इज 24 मंथ। सो इट इज एन एडवांस्ड ऑप्शन। ठीक है, ये एक एडवांस्ड ऑप्शन है जिसको देने का वादा किया है रशिया ने। रशिया के उस न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन का नाम भी आप याद रखिएगा, उसका नाम है रोसएटम। ठीक है, रशिया का स्टेट ओन न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन है, उसका नाम है रोसएटम, जो ये फ्यूल हमें प्रोवाइड करेगा जिसकी लाइफ होगी 24 मंथ्स। दैट इज इट इन दिस न्यूज। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और एक न्यूज की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। यहाँ पर क्या हुआ है कि आसाम और मेघालय की बॉर्डर पर एक फायरिंग में कुछ 6 लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, 6 लोगों की डेथ हो गई आसाम और मेघालय की बॉर्डर में एंड इट इज डन बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ आसाम एंड इट इज कॉल्ड एज क्लियर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय द मेघालय गवर्नमेंट। मेघालय के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये जो फायरिंग है ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है और इसलिए एक पैनल बनाया गया है, हाई लेवल टीम बनाई गई है जिसमें एनएचआरसी के चेयरमैन से मुलाकात की और इस मामले में खींचा। देखिए ये एक क्लासिक केस है इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स का। This is very very dangerous for us as the Prime Minister says we should adhere on the idea of cooperative federalism, but this is something very very dangerous. All right, so ये एक classic example है जिसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज देखते हैं। 7.72 लाख न्यू वोटर्स इन जम्मू एंड कश्मीर रिवाइज्ड इलेक्टोरल रोल। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर हो गए हैं। 7.72 लाख नए वोटर्स को इसमें ऐड किया गया है ना, इसमें ऐड किया गया है। उम्मीद है जल्दी जम्मू और कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शंस होंगे आफ्टर द अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया जिसने स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बाइफ्रुकेट कर दिया, एक थी लद्दाख और दूसरी थी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी होगी वो दिल्ली और पुडुचेरी जैसी यूटी होगी जिसमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी। ऑलराइट, तो कुछ उसका स्टेटस दिल्ली और पुडुचेरी जैसा होगा। फाइन, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नाउ दिस इज द टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स, दैट इज द कूल। सो 22nd इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग इज बीइंग हेल्ड एट ढाका बांग्लादेश। ढाका में 22nd IORA की मीटिंग चल रही है। 26 November is also celebrated as National Milk Day to commemorate the contributions of legendary Dr. Verghese Kurian, who is also known as Father of White Revolution. ठीक है, Father of White Revolution डॉक्टर वर्गीस कुरियन का 26
नवंबर को बर्थडे होता है, जिसको नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन इंडियन आर्मीज दक्षिण शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, दक्षिण शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज में अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स का डेमोन्स्ट्रेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज a draft prevention of cruelty to animals amendment bill 2022 was released recently by Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying for public comments। ठीक है, तो पब्लिक कमेंट के लिए इस बिल को भेजा जा रहा है ताकि जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट ऑफ 1960 है उसमें बदलाव किए जा सके। So this is it in today's news. Now it's the time for quiz. Let's see what are the question. Question number 1 is the Constitution Day is celebrated on option A 26 November, B 26 January, C 26 December, D none of these. Second question is in which year MG Narega was passed, 2002, 2003, 2004 or 2005? Guys, if you know the answer, please let us know in the comment box. If you don't know the answer, stay tuned with us and watch the daily news review of tomorrow. So with this, me Varun Pradhan signing off for today. I hope you guys learned something new. If you did, then please hit like button, subscribe to our channel, share this video with fellow aspirants, comment your feedback or doubts if any, and follow us on different social media handles. With this note, I am taking leave. Have a great day.